السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 11واں رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَاهَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دی موسیٰ کو تورات اور اس کے بعد ہم نے بھیجے ان کے پاس پیغمبر۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے ہو، اور ایک گروہ کو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان کو لعنت کر رکھی ہے، بس تھوڑے ہی پر یہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو پہلے ان 3 آیتوں کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اس کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو اپنے عجائب علامات عطا کیے اور جبریل امی کے ذریعے ان کو طاقت دی۔ تو اے یہودیوں کی جماعت، کیوں تمہارے دل میں اور تمہارے دین موافقت نہیں کرتا اور تم رسول پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو؟ مطلب یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا کرتے تھے، لیکن جو بعد میں رسول آئے، بعد میں نبی آئے، ان کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا، اور ایک جماعت نے، یعنی تم میں سے ہی جو تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو قتل بھی کیا، یعنی 2 نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور ہمارے نبی کو اور حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ یہود کی جماعت آپ کے علم اور فرمان کے مطابق یہ کہتی ہے کہ ہمارے دل میں ہر علم کے لیے نئے برتن ہیں، اور ہمارے دل آپ کے علم اور فرمان کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کے فرمانوں کو جو ہے، ان کے علم کو جو وہ بات بتاتے ہیں اس کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے کفر کی سزا میں اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ ان کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور ان میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں۔ اور تھوڑی چیز پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یعنی آدھے احکامات کو مانتے ہیں اور آدھے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں مگر صرف تھوڑی چیزوں پر۔ پھر آگے والی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب خدا کی یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کے کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگے کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تورات دی ان کو، یہودیوں کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اور ایسے ایسے مطلب ان کی خوبیاں، ان کی تمام نشانیاں اللہ نے ان کو بتا دی تھیں تورات میں۔ تو یہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے نبی آئے اور ساری نشانیاں ظاہر بھی ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پتہ ہے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، یہود قبیلے اوس اور خزرج کے خلاف جب ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی آپس میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد طلب کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو مطلب جو آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے تو ان کے وسیلے سے ہمیں غلبہ دے دے۔ تو یہ ہمارے نبی کا وسیلہ مانگا کرتے تھے اپنی لڑائیوں میں۔ جب اللہ نے عرب میں آپ کو مبعوث فرما دیا، یعنی بھیج دیا، تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے کافروں پر فتح مانگے کرتے تھے، آپ کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس آ گئے، مطلب آپ پہنچ گئے، ہم نے پہنچا دیا، تو وہ کافر ہو گئے، اور پس کافروں پر خدا کی لعنت، یعنی کہ یہ پہلے تو مانتے تھے اور پھر بعد میں انکار کرنے لگے۔
आगे आए थे बिसमश्तरू बिही अनफुसहुम यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। जिस चीज़ के बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। खुदा की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गज़ब में मुब्तला हो गए और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और आगे वाली आयत है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअह व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम क़ुल फ़लिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो खुदा ने नाजिल फरमाई है उसको मानो तो कहते हैं कि जो किताब हम पर नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, ये इसके सिवा और किसी किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सच्ची है। जो उनकी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है, कह दो उसकी भी तस्दीक करती है। तो कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो खुदा के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजिज़ात लेकर आए तो तुम उनके बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम जुल्म करते थे। मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इसकी तफसीर ये है कि जब इन यहूदियों से कुरान हकीम पर ईमान लाने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हम तौरात पर ईमान लाएंगे, और जब तौरात के अलावा तमाम किताबों का इनकार करेंगे। और हालांकि कुरान भी सच है और तौरात भी अल्लाह की भेजी हुई किताब थी और उसमें भी कुरान के मुताबिक बातें हैं। और ये कहते हैं कि ए मोहम्मद हमारे बाप दादा मोमिन थे, यानी अल्लाह को मानते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए मोहम्मद आप जवाब में ये फरमा दीजिए कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो पहले तुम्हारे आबा अजदाद ने नबियों को क्यों कत्ल किया, हज़रत याह्या हज़रत ज़करिया को क्यों कत्ल किया और मानने से उन्हें इनकार कर दिया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए गए थे तो तुमने क्यों बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। अगर तुम हकीकत में ईमान वाले थे तो तुमने बछड़े की पूजा क्यों करी और तुमने क्या कहते हैं नबियों को क्यों कत्ल किया। और हज़रत मूसा को भी तुमने जो चीज़ आसान लगी वो मानी और जो भारी लगी उसको मानने से इनकार कर दिया। तुम तो पहले से ही जालिम हो। तो इसकी तफसीर है। आगे आया थे वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तुरा ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि और कोहे तूर को तुम पर उठाकर खड़ा किया, जो हमने तुमको किताब दी है उसको ज़ोर से पकड़ो और सुनो, तो वो कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं। और उनके कुफ्र के सबब उनके दिलों में रच गया था, मतलब बछड़ा जो था उन्होंने जो बनाया था तो वो उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में रच गया था। कह दो अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है क्या। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों के लिए नहीं और खुदा के नज़दीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू करो। मतलब इसकी तफसीर ये है, ऊपर वाली आयत की जो है वो ये तफसीर है कि जब हमने तुमसे इकरार लिया और पहाड़ को उखाड़ कर तुम्हारे सरों पर उठाया कि जो तुम पर अहकाम उतारे गए उसको मानो वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर पहाड़ ऊपर न होता तो हम सिर्फ आपकी बात को मानते और सब बातों को की नाफरमानी करते। जो दिल करता वो मानते, जो दिल करता ना मानते। उनके दिलों में उनकी कुफ्र की वजह से बछड़े की परस्तिश की मोहब्बत दाखिल कर दी गई, यानी कि इनके दिल में जो थी अंदरूनी इनके दिल जो थे वो साफ़ नहीं थे और इनके दिलों पर मोहर अल्लाह ने लगा दी थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, बछड़े को माबूद मान लिया। और अब ये कहते हैं कि हमारा जो है अल्लाह के घर सिर्फ यहूदी ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे और कोई कौम जन्नत में नहीं जाएगी। तो इनसे कहो कि अगर तुम्हें यकीन है कि यहूदी ही जन्नत में जाएंगे तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे
उन अमाल की वजह से जो उन्होंने आगे भेज दिए हैं, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानने वाला है। यानी कि इसकी तफसीर ये है कि वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे मौत की, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किया है, कैसे कैसे नबियों को कत्ल किया है, कैसे अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, हर बात वो जानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को मतलब झूठ बताते फिरते हैं, और उनके दिलों में चोर है। एक तरीके से ये कहा जाएगा कि उनके दिलों में चोर है, वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला तो इन जालिमों को खूब जानने वाला है। और आगे आयत है, वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। बल्कि उनको तुम और लोगों से ज़िंदगी के कहीं हरीस देखोगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी। उनमें से हर एक की यही ख्वाहिश करता है कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती, और जो काम ये करते हैं खुदा उनको देख रहा है। तो इस आयत की तफसीर ये है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन यहूदियों को ज़िंदा रहने का मुशरिकीन अरब से भी ज़्यादा हरीस पाओगे। यानी कि इनको ज़िंदगी का मुशरिकीन अरब से भी ज़्यादा शौक़ है ज़िंदा रहने का और दुनिया में रहने का। उनमें से हर एक इस बात की तमन्ना करता है कि वो 1000 साल तक जिए, और हर एक ये चाहता है कि उसकी हर शब बारात और हर रोज़ रोज़े ईद हो, यानी पूरी ज़िंदगी खुशी और ऐशो इशरत के साथ गुजरें। लेकिन अगर ये लोग 1000 साल तक भी ज़िंदा रहेंगे तब भी अल्लाह के अज़ाब से छुटकारा नहीं पा सकते। और अल्लाह ताला उनके गुनाहों और हक बात से आगे बढ़ने की वजह से, और रसूल इन चीज़ों की वजह से जो ये रसूल के औसाफ और सिफत के मुताबिक अपने दिलों में छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा जानने वाला है। तो इसका मतलब यही आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप तमाम तफसीरें सुन रहे हैं तो यहाँ पर यहूदियों से खिताब चल रहा है। 3-4 रुकू हो गए लगातार अल्लाह ताला यहूदियों से खिताब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला यहूदियों को कितनी नेमतों से नवाजा, लेकिन इन्होंने हमेशा नाफरमानी की। इन्होंने क्या क्या किया, हज़रत मूसा के साथ क्या किया और नबियों के साथ क्या किया, उम्मीद है आपको सब मालूम चल गया होगा। और जो बात समझ में नहीं आई हो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनकी यहूदियों की बाहकीकत जो है अल्लाह ताला सामने लेकर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया हो। अस्सलाम वालेकुम।